Assalamu alaikum. Hi friends, this is Ishfaq Ahmad. Welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ishfaq Chopan. Today we are discussing about a relationship between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. We will be showing some basic relationships between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, and later we will be solving certain important examples on the specific topic. Okay, let me first define arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. Friends, if we have let A and B be any two positive real numbers, then the arithmetic mean of A and B is defined as A plus B by 2, and geometric mean of A and B is defined as square root of A and B, and the harmonic mean of the same two positive real numbers is defined as twice AB divided by A plus B. This is what how we observe the definitions of the arithmetic mean, geometric mean and the harmonic mean for any two positive real numbers. Now friends, moving ahead, we will be showing a result that if we have any two positive real numbers A and B, then for these two real numbers our geometric mean square is equal to arithmetic mean and the harmonic mean, this very result. And we will be showing this very fundamental result that for arithmetic mean is greater than geometric mean, greater than or equal to geometric mean and greater than or equal to harmonic mean. These are the two fundamental results, but we are showing this result only for any two positive real numbers. However, in fact it could be shown for the n positive real numbers. Let me first show the geometric mean square is equal to arithmetic mean into harmonic mean. Okay, first of all, if we have considered A and B as two positive real numbers, then our arithmetic mean will be defined as A plus B by 2. Okay, it's clear. I have already defined it as geometric mean of these two real numbers as under root of AB. Similarly, and the harmonic mean as per definition, this is I'm showing the first result, proof of the first result. This is harmonic mean is this is twice AB divided by A plus B. Okay, this is can be easily shown how this is equal to this actually. Now if we take the harmonic mean here, harmonic mean is equal to twice AB divided by A plus B. This can be shown as this will be equal to AB divided by A plus B by 2. इस 2 को नीचे लाया मैंने. It's obvious. You can note AB. Our geometric mean is equal to under root of AB, but this is AB, so this is basically square of the geometric mean, isn't it? AB is square of the geometric mean because our geometric mean is equal to under root of AB. If you can note, अगर आप डिनोमिनेटर को देखिए तो A प्लस बी बाई 2 ये क्लियरली है हमारा अर्थमेटिक मीन. तो एक्चुअली आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? आप देख रहे हो आपका हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन square divided by arithmetic mean. So it's obviously you multiply this arithmetic mean to this harmonic mean, you will get clearly your harmonic mean into arithmetic mean is equal to geometric mean whole square. तो ये वाला हमारा रिजल्ट जो है इट इज ऑब्वियस. आप एक साथ बोर्ड पे इसको देखिए. अब क्या मैंने कर दिया, हार्मोनिक मीन इज इक्वल दिस, दिस इज इक्वल दिस, दिस इज इक्वल दिस, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा रिजल्ट का प्रूफ आ गया. तो ये नोट कीजिएगा सबसे पहले आप. अब हम दूसरे रिजल्ट पर जाएंगे. नाउ गोइंग टू फॉर द प्रूफ ऑफ द सेकंड, इफ वी टेक आवर
अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनेगा a प्लस बी बाई टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी। यही बनेगा डेफिनेशन के हिसाब से। क्लियर है? सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो ये a से बनेगा a प्लस बी माइनस ट्वाइस रूट ऑफ ए बी divided by 2, isn't it? Okay, it's clear। ऐसे कर दिया हमने। तो यहाँ पे ऊपर देखिए, it's just our formula अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऊपर देखिए, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। इस फॉर्मूला को इवेलुएट कीजिए, ये डिनोमिनेटर आएगा। तो अब तक हमारे पास a से आ गया, is it? तो दोस्तों यहाँ पे नोट कीजिएगा, आपका जो न्यूमरेटर होगा वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा। एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा क्योंकि आपका न्यूमरेटर ऊपर स्क्वायर करके है, नीचे तो 2 है। तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं ये नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी राइट हैंड साइड हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब आपका अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज और अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, this is greater than or equal to 0. It implies our arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean. तो ये आपका सबसे पहला वाला रिजल्ट जो है ये बन रहा है। आप नोट कीजिएगा, सारा हमने कैसे कर दिया यहाँ तक अभी। तो आप कह सकते हैं कि आधा पोर्शन जो हमने किया, हमने ये दिखाया कि हमारा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन होता है। ये दिखाने के लिए कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन is greater than or equal to harmonic mean, we need to do nothing. Actually we have already shown geometric mean square equal to arithmetic mean into harmonic mean. Okay, we have already shown it. It implies you can show that geometric mean is actually square root of arithmetic mean and हार्मोनिक मीन। तो आप ये बता सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन जो एक्चुअली ये ज्योमेट्रिक मीन ही है यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का और हार्मोनिक मीन का। तो आप इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन हैज टू बी इन बिटवीन अर्थमेटिक मीन and the harmonic mean. So we could generalize this result to this form: our arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean, this is greater than or equal to harmonic mean. तो ये हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है, डिजायर्ड फॉर्म है, तो ये यहाँ पर हमारी आ रही है। अब हम कुछ एग्जाम्पल इस पे करते हैं। सबसे पहले हमने आपको ये रिजल्ट दिखाए, तो आगे चलते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं एक रिजल्ट से और कुछ 1-2 रिजल्ट और करते हैं। चलिए आगे। So friends, let's take here an example to understand. We have given an example. If our A is 1 and our B is 5, we have to verify the relationship that geometric mean square is equal to arithmetic mean into harmonic mean. Given the example here, अगर हम यहाँ पे ले arithmetic mean इन दो नंबर्स का, तो क्या है A plus B by 2. This is 1 plus 5 divided by 2. This is 6 by 2. That's 3. Okay. It's clear. Now if we take geometric mean, this is under root of AB. This is 1 into 5. Okay, that's under root of 5. Now if we take the harmonic mean, this is simply twice AB. This is 2 into A into B divided by A plus B. That is 1 plus 5. Okay, this is 10, 2 5 is 10 divided by 6, that is 2 से cancel करते हैं, this is 5 is, this is 3 is. Okay, so this is our arithmetic mean, this is geometric mean and this one is harmonic mean. तो क्या करते हैं, अगर हम पहले करें arithmetic mean into harmonic mean ले, यहाँ पे किसके बराबर आएगा, arithmetic mean this is 3 and our harmonic mean this is 5 by 3.
3 3 कैंसिल होगा, तो अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन आएगा हमारा 5। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ले, क्योंकि हमें वो वेरीफाई रिलेशनशिप करनी है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, हमें ज्योमेट्रिक मीन जो आया है वो है आया है √5, इसको स्क्वायर करके आएगा 5। तो आप क्या नोट कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, देयरफॉर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ये हमने एक एग्जाम्पल से समझा उस वाले जनरल रिजल्ट को। चलिए आगे एक और रिजल्ट करते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई हमारे लिए सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी, ये बताया गया है वहां से कि ए बी सी जो है ये ए पी में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर हमारे पास ए बी सी इज इक्वल 64, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी? इट्स टू बी सॉल्व्ड। वी नाउ arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean for any set of positive real numbers. Okay, it implies for these two real numbers we will have a plus b plus c divided by 3 will be greater than or equal to, यहाँ पे तो 3 नंबर्स है, मैंने जनरलाइज बोला कि सही होता है, तो ये होगा हमारे लिए क्यूब रूट ऑफ ए बी सी से ग्रेटर। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी को ग्रेटर देन और इक्वल लगाएंगे, इस 3 को ऊपर लाते हैं 3, इसको ऐसे लिखेंगे a b c पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है हमारा, ऑब्वियस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम बताएंगे a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन और इक्वल 3। क्वेश्चन में वहां से ही दिया गया है a b c इज 64, इसको वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं 64 पावर 1/3। इट इम्प्लाइज, यहाँ पे एक स्टेप और लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल 3। 3 को ऐसे रखते हैं, 64 की पावर वर्जन लिखते हैं, वो है 4 पावर 3, ऊपर पावर है 1/3। ये 3 कैंसल आउट, तो हमारा क्या आ गया एक्चुअली, a प्लस बी प्लस सी दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते आएगा 12। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट एक बन गया यहाँ पे। लेकिन हम कुछ और ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। लेकिन एक चीज दिया गया है वहां से, एज ए बी एंड सी आर इन ए पी, तो क्या होगा, बी हमारा होगा बराबर a प्लस सी बाई 2 होगा ना, बीच वाला टर्म दोनों का एड और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ऐसे ही कह सकते हैं आप, a प्लस सी इज बेसिकली इक्वल टू बी। तो क्या करेंगे आप, इट इम्प्लाइज, यहाँ पे लगाओ ये वैल्यू सबस्टिट्यूट, इट इम्प्लाइज b को अपनी जगह रखो, a प्लस सी के बदले दे दो 2b, क्योंकि आपने यहाँ पे चेक किया b प्लस 2b दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 12। अब b का वैल्यू ढूंढ रहे हो, b का लिमिट क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आपको आएगा 3b दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल 12, इजंट इट? 3 को नीचे लाइए, b इज ग्रेटर देन और इक्वल 12/3, दैट इज b इज ग्रेटर देन और इक्वल 4। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमने बहुत इजीली कर दिया। यहाँ पे नोट कीजिए कैसे कर दिया हमने सारा इसका फंडा। अब एक और क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते देखते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं हम, अगर हमारे पास ए बी सी है, 3 पॉजिटिव नंबर्स है, हमको दिखाना है कि लिस्ट वैल्यू क्या होगा इस वाले नंबर का, क्या होगा इसका लिस्ट वैल्यू। नोट कीजिएगा, हमारे पास अगर अर्थमेटिक मीन ले हम इसका, इन 3 नंबर्स का अगर हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन ले, तो होगा ऐसे, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। इट्स ऑब्वियस बाय डेफिनेशन। अगर हम ले हार्मोनिक मीन इन्हीं 3 नंबर्स का, तो ऐसे होगा, 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन लेते हैं हम, ये होगा 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, क्योंकि एक जनरल डेफिनेशन होती है n डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर n नंबर्स होंगे, यहाँ पे तो 3 है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम एक्चुअली जानते हैं, वी नाउ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, इट इम्प्लाइज आवर a प्लस बी प्लस सी
divided by 3. This will be greater than or equal to 3 divided by 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. ये ऑब्वियसली होगा. तो क्या करें, इसमें कुछ करना ही नहीं है. इस डिनोमिनेटर को उस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसे आएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी. ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई एक किस्म का. ठीक है, यहां से यहां होगा तो क्या आएगा, बीच में ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9. तो क्या दिखाया हमने दिखाया ये वाला जो हमें चेक करना था, द नंबर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9. That is, the 9 is going to be the least value of this value which we are supposed to check. Hoping that कि ये सारा आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, इंटरेस्टिंग होगा. आपका हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस.